Right, sir. Okay, fine. Okay, so are you able to see my screen now? Is it okay? Yes, sir. Apart from the black strips. Yes, yes. Okay, sir. Please Okay. go ahead. So Yes. see, if I am opening other windows like chat window and all that, you will see those black spots. So I'm not trying to open those windows. If you have anything, please speak out. Okay. If you have any doubts, please speak out. I will try to answer right away, right here like this. Okay. So let me just proceed further. So let's proceed with today's topic, that is content management. Okay. The topic covers 3 modules, that is basic website designing, copywriting, and SEO basics. Inshallah, we'll try to cover them in next 1 hour. So we will proceed further with the first module, which is basic website designing. Okay. What we are going to learn here is basic concepts of web and web designing using CMS. I will show you what is CMS configurations, customizations, and how to launch your own website. So this is going to be one of the most exciting modules that you'll be doing in this whole class. Okay. So let's proceed with basics. I don't know how many people know about the web, till what extent. Okay, I don't know what exactly is the level of your knowledge, but let me go ahead and share few basics with you. ठीक है, थोड़े से basics देखते हैं ताकि एक थोड़ा सा brush up हो जाए. हो सकता है आप में से सबको पता होगा या शायद किसी को पता होगा, किसी को नहीं होगा. So what exactly is a website? Website is a collection of pages. जो website होती है वो एक collection of pages होती है, और हर पेज को हम बोलते हैं वेब पेज. जैसा बुक का पेज एक नॉर्मल पेज होता है, जो बुक में जो पेजेस होते हैं उसको हम वी कॉल इट देम पेजेस, बट वेबसाइट्स पेजेस आर नोन एज वेब पेजेस. वेब पेजेस बने हुए होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू. ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करके हम एक वेब पेज बनाते हैं. व्हाट आर दोस कंपोनेंट्स एंड व्हाट गोज इनटू अ वेब पेज? किन चीजों से वेब पेज बनता है? वी यूज HTML. HTML is hypertext markup language. These are all abbreviations. I am not going to go into detail of that because that is very हाई लेवल टॉपिक. तो हम उतना हाई लेवल पे नहीं जाएंगे. These are just basics. उसके अंदर CSS होता है. CSS बस इतना समझ लीजिए, इट्स अ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. जो स्टाइल शीट्स आपके वेब पेज पे कौन सी चीज कैसी नजर आना है, किस चीज को कैसा कलर देना है, जो स्टाइल्स होते हैं बेसिकली, दोज इंफॉर्मेशंस आर स्टोर्ड इन CSS और कस्टम cascading style sheets. Okay, then we have something called as Bootstrap. Bootstrap क्या होता है? Bootstrap is the latest technology that is being used in order to make a website visible and appearable in both laptop or desktop as well as on mobile devices. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली एक वेबसाइट का, वो Bootstrap के अंदर बना हुआ होता है. Then we have something called as PHP, ASP.NET. बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में सुना होगा, right? Especially those who are from this background, जो programming के background के है, they might be having knowledge about these things. But the beauty of our course is what we are doing here is we don't need to know all of these things. ठीक है, we don't need to know all of these things. So let's proceed further. ये जो आप देख रहे हैं www.xyz.com, जो भी है website.com, इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम. एंड डोमेन नेम कैन बी ईदर इनसिक्योर और सिक्योर. इनसिक्योर कौन सा होता है? जिसमें HTTP आता है सिर्फ, जैसा अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, I have used http://www.website.com. ऐसे ही आप देखेंगे कि जो है ना एक HTTPS के साथ आता है, जिसको ग्रीन कलर का लॉक बताता है आपके क्रोम में. तो HTTPS और HTTP में फर्क क्या है? HTTPS जो है सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं. जितनी वेबसाइट्स पे ट्रांजैक्शंस होते हैं सबके सब सिक्योर होते हैं. और अगर आपको एक सिक्योर वेबसाइट आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपकी वेबसाइट पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पे जो है ना कोई ई-कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, या फिर डेटाबेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो एट द टाइम यू मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट, जिसको हम SSL बोलते हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे HTTPS रहना बहुत जरूरी है. इट्स रिकमेंडेड. अभी जो है ना जो भी वेबसाइट्स पे नहीं है, गूगल उनको ब्लैकलिस्ट कर रहा है. इफ योर वेबसाइट इज डूइंग ट्रांजैक्शंस विदाउट HTTPS, तो गूगल उसको ब्लैकलिस्ट कर रहा है. ओके, let us now see where all of these things are stored. जो पेजेस हैं, जो आपके वेबसाइट जिससे बनी हुई है, वो कहाँ पे रखी होती है. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई फाइल रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, इन C ड्राइव और D ड्राइव समवेयर, राइट? तो जहाँ कहीं भी आप रखेंगे वो आपका एक स्टोरेज स्पेस होगा. इन द सेम वे वेबसाइट भी जो है ना एक पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर रखी हुई होती है. दैट स्पेस इज नोन एज वेब स्पेस. ओके, एंड वेब स्पेस इज स्टोर्ड ऑन अ सर्वर. वेब स्पेस कहाँ पे होती है? एक सर्वर के ऊपर होती है, जिसको वेब सर्वर बोलते हैं. What is the difference between a server and a normal computer? नॉर्मल जो कंप्यूटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर है, इसमें हम एक टाइम पे एक ही टाइम कर सकते हैं. एक बंदा एक टाइम पे एक काम कर सकता है. बट सर्वर इज अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर. इतना हैवी कंप्यूटर होता है कि इट कैन हैंडल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट्स एट द सेम टाइम. इसीलिए जो है ना एक वेबसाइट पे अगर 1000, 2000, 1 लाख, 5 लाख लोग भी अगर जब भी एक्सेस करें तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होता.
तो these web servers are specially made hardware to handle that kind of requests. उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी वैसा होता है. Now proceeding further with this, वेब सर्वर्स किसके पास होते हैं? वेब सर्वर्स होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास. तो दिस इज द होल बैकग्राउंड ऑफ अ वेबसाइट. आपको सिर्फ सामने google.com नजर आता होगा, ठीक है, बट google.com के पीछे इतनी सारी चीजें होती हैं. वेब स्पेस है जहाँ पे google.com रखा हुआ है, वो वेब स्पेस जो है ना उसके वेब सर्वर्स पे है. वेब सर्वर्स दुनिया में कई जगह पे फैले हुए हैं और उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है? गूगल है. तो सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स. डोमेन नेम जो होता है ना, डोमेन नेम वो हमको देता है. जहाँ पे वो डोमेन नेम रखने के लिए जो जगह चाहिए, वो वेब स्पेस जिसको बोलते हैं, होस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड करता है. और उसको वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए HTTPS सर्टिफिकेट जो होता है वो हमको एक सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है. ऑफ कोर्स नॉट फॉर फ्री, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें मेंटेन करने के लिए उसको भी पैसा लगता है. तो दैट इज व्हाई यू विल बी पेइंग फॉर डोमेन नेम प्लस होस्टिंग प्लस SSL सर्टिफिकेट. इन तीन चीजों के लिए आपको पे करना पड़ता है. लेट्स नाउ प्रोसीड फर्दर. कितने टाइप की वेबसाइट्स होती हैं? वेबसाइट्स बेसिकली जो है ना दो टाइप की होती हैं. एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी होती है डायनामिक वेबसाइट. स्टैटिक वेबसाइट जो होती है उसमें और डायनामिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? लेट्स सी. स्टैटिक वेबसाइट जो होती है, इट्स अ प्लेन वेबसाइट, इट डजंट हैव एनी डेटाबेस, it doesn't have any programming involvement. Okay, it's basically a plain vanilla without any scripting, without any form submissions, nothing. इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्लेन डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स कहीं डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ है, या आप फॉर एग्जांपल कोई एक ऐड पे क्लिक करते हैं तो कहीं पे दूसरी जगह एक बड़े ऐड पे लेके जाता है जहाँ पे सिर्फ एक इमेज होती है, उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेजेस. उसके अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, ज्यादा कुछ आपका जो है ना इंटरेक्शन नहीं होता वेबसाइट से. इन्फॉर्मेशन फ्लायर्स वगैरह होते हैं, स्टैटिक एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? स्टैटिक टाइप के वेबसाइट्स में जाती हैं. कंपेयर टू दैट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज डायनामिक वेबसाइट. डायनामिक वेबसाइट क्या होती है? डायनामिक वेबसाइट्स आर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स. इनको जो है ना बैक एंड डेटाबेस चाहिए. जो भी आप काम कर रहे हैं वो पूरे का पूरा फाइल्स, सेटिंग्स, हर चीज एक डेटाबेस के ऊपर वो स्टोर करता है, ठीक है. नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज डेटाबेस बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक. डेटाबेस में समझिए कि आपके जो भी आपका डेटा है वेबसाइट से रिलेटेड, उसके रखने की एक जगह है, एक लेमन्स लैंग्वेज में. ओके, और हमारे इस कोर्स के लिए उतना ही काफी है. वी डोंट नीड मच अबाउट दैट. इट्स अ हाई लेवल टॉपिक दैट कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इन एडवांस्ड कोर्सेज. तो जो डायनामिक वेबसाइट होती है वो फुल ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी A to Z उसमें प्रोग्रामिंग ही प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है. अब ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए, है ना. बट वी विल सी हाउ टू प्रोग्राम और हाउ टू डिजाइन दिस काइंड ऑफ वेबसाइट्स. इसके लिए आपको लॉट ऑफ स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर बंदे का नाम और पासवर्ड सही नहीं है तो क्या करना है, अगर सही है तो क्या करना है, उस तमाम की तमाम चीजें जो है ना इंटरैक्टिव वेबसाइट होती है, एक यूजर के साथ में इंटरैक्ट करती रहती है वेबसाइट. पासवर्ड सही है तो ठीक है, आपको लॉगिन पेज के बाद में आपका जो है ना नेक्स्ट पेज आ जाएगा. अगर पासवर्ड सही नहीं है तो फिर आपको वापस बाहर निकाल के बोलेगा योर पासवर्ड और यूजर नेम इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना. ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना इंटरैक्शन के थ्रू होती है. एंड लॉट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स रन इन द बैकग्राउंड. इसके बैकग्राउंड में जो है ना बहुत सारी स्क्रिप्ट्स रन होती है. और इसके लिए क्या है, आपको ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज इसके अंदर पॉसिबल है, क्योंकि डेटा इसके अंदर कलेक्ट होता है. एग्जांपल के लिए आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहां पे आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहां पे क्या क्या डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है. एक तो जो है ना कौन सा प्रोडक्ट आपने चूज किया वो, दूसरा जब आप चेकआउट करते हैं तब आपके जो आपके डिटेल्स, शिपमेंट के जो डिटेल्स है, कहाँ पे शिपमेंट करना है वो आपके पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस है, आपके तमाम डिटेल्स. थर्ड थिंग आपके पेमेंट डिटेल्स, वो तमाम के तमाम जो है ना कलेक्ट हो रहे हैं. ऑल ऑफ दोज आर बीइंग कलेक्टेड ऑनलाइन. तो ये ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज इसमें होती हैं, इसमें डेटा कलेक्शन पॉसिबल है. और एक चीज डायनामिक वेबसाइट्स के ताल्लुक से क्या है कि इसके ऊपर आप लाइव अपडेट्स डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप अगर कोई क्रिक इन्फो, मेरे ख्याल से बहुत लोग क्रिक इन्फो से वाकिफ हैं, राइट. इट्स अ वेबसाइट फॉर क्रिकेट लवर्स. तो क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत कॉमन वेबसाइट है. या फिर आज जब भी, अभी तो खैर क्रिकेट नहीं चल रहा है, कोई गेम्स नहीं चल रहा है, लेकिन जब कभी भी गेम्स चलते हैं या फिर कोई रिजल्ट्स आने होते हैं, उस टाइम पे जो है ना सर्टेन वेबसाइट्स उसको पब्लिश करती हैं लाइव. तो वो जो लाइव अपडेट्स है ना वो डायनामिक वेबसाइट के अंदर पॉसिबल है, स्टैटिक वेबसाइट के अंदर पॉसिबल नहीं है. और इनफैक्ट इंटीग्रेशंस जो है ना डायनामिक वेबसाइट में पॉसिबल है. फॉर एग्जांपल बैंक के अकाउंट के डिटेल्स आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं. आप जो है ना क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तमाम चीजें इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसका एग्जांपल क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं या फिर लाइव स्ट्रीमिंग की वेबसाइट्स हैं, जैसे कि याहू है, सॉरी यूट्यूब है, विमियो है, XYZ, बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स लाइव स्ट्रीमिंग की निकल गई हैं, वो वेबसाइट्स हैं. इससे हटके जो है ना न्यूज की वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जो है ना अपडेट्स आते रहते हैं, या फिर कॉर्पोरेट पोर्टल्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पोर्टल्स होते हैं वो हैं, या फिर फोरम्स वगैरह हैं. ये तमाम की तमाम आजकल जितनी वेबसाइट्स देख रहे हैं आप, मैं ये बोलूंगा कि 95 to 98% सारी की सारी डायनेमिक वेबसाइट्स हैं. अब ये देखते हैं हम कि ये वेबसाइट्स
डिजाइन कैसी होती है, बनती कैसी है. अब वी विल स्टॉप फॉर 2 minutes बिकॉज अजान इज गोइंग ऑन. इंशाल्लाह वी विल रीस्टार्ट आफ्टर अजान इज कंप्लीटेड. जज़ाकल्लाह. Okay, so here we are. Alhamdulillah, azan is over. Now let's restart. So how websites are made, how these static and dynamic websites are made, it's very, very simple. स्टैटिक वेबसाइट्स जो है ना वो पहले डिजाइन की जाती थी ड्रीमवीवर नाम के एक सॉफ्टवेयर के अंदर. ओके, ड्रीमवीवर वाज वेरी वेरी कॉमन, बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर ये सारी वेबसाइट्स बनाई जाती थी. बिकॉज प्रीवियसली प्रोग्रामिंग उतनी ज्यादा नहीं थी, इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था वेबसाइट्स में. पीपल यूज्ड टू हैव वेरी स्टैटिक काइंड ऑफ वेबसाइट्स जिसके अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती थी. इवन कॉन्टैक्ट पेज के अंदर भी जो है ना कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं हुआ करता था. एट दैट टाइम ड्रीमवीवर वाज फाइन, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स उसके अंदर बनती थी. आई यूज्ड टू डिजाइन वेबसाइट्स इन देम आल्सो. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड चेंज्ड. ओके, नाउ वी गॉट मोबाइल डिवाइसेस. हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस आ गई हैं और हमको ऐसी वेबसाइट चाहिए जो मोबाइल डिवाइस पे आए तो मोबाइल डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाए. एंड व्हेन इट गोस बैक टू द डेस्कटॉप और लैपटॉप इट शुड गो बैक टू द बिग साइज. तो इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स. तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के आने की वजह से क्या हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज्ड. टेक्नोलॉजी चेंज में क्या हुआ, HTML जो है ना पहले से यूज होता है, CSS आ गया. ठीक है, CSS में भी अभी वर्जन 3 चल रहा है, जो 3 जो बता रहा है बाद में बाजू में, that is version 3 of CSS. Then we got something called as bootstrap. bootstrap जो है ना एक फ्रेमवर्क होता है. फॉर एग्जांपल आपके पास जमीन है, आप जब घर बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली जो है ना आप एक सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, वो एक नक्शा बना के देता है आपको, पहले घर का एक लेआउट बना के देता है. तो जो लेआउट डिजाइन होता है ना वो बूटस्ट्रैप के अंदर होता है. ठीक है, तो दैट लेआउट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिवाइस. अगर टैबलेट के ऊपर है तो टैबलेट के हिसाब से बन जाएगा, मोबाइल डिवाइस पे हो तो मोबाइल डिवाइस के स्क्रीन के हिसाब से बन जाएगी वेबसाइट. वैसे ही अगर बड़ा स्क्रीन हो तो बड़े स्क्रीन के हिसाब से बन जाएगी. नाउ गोइंग ऑन टू डायनेमिक वेबसाइट्स. अभी डायनेमिक वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, बैकएंड में डेटाबेस चाहिए, सब कुछ चाहिए. इमेजिन आपको अगर एक डायनेमिक वेबसाइट बनानी है आज के जमाने में, क्योंकि मैंने बोला कि आपको 95 to 98% websites are dynamic websites in today's world. Nobody is using static websites. So how are you going to design it? Are you a programmer? No, I am not a programmer. I don't know programming. You don't know programming. तो हम क्या करेंगे, we will go for alternative option. एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है CMS या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम उसको बोलते हैं. उसकी खूबी ये होती है कि इट गिव्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन अ नटशेल. HTML, CSS, Bootstrap, PHP, स्क्रिप्ट्स, सब कुछ लेके वो डेटाबेस के ऊपर रख के आपको एक वेबसाइट बनाने का चांस देता है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज. तो द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर विल बी you can create dynamic websites without any programming knowledge. That is the most beautiful thing about this system, content management system. तो जैसे Microsoft Word है, Excel है, PowerPoint है, और Word के अगर आप Microsoft Word के अगर आप देख लें तो there are many rebels in the market. ठीक है, बहुत सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं. वैसे ही जो है ना हर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक रेबेल या फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है. सो व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड CMSs इन द मार्केट? वर्डप्रेस है, जूमला है एंड ड्रूपल. ओके, दीज आर सम ऑफ द नेम्स. देयर आर मेनी, एक्चुअली बहुत सारे हैं. जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसकी आप लिस्ट देख के परेशान हो जाएंगे, बट वी विल गो विद द मोस्ट पॉपुलर वन. ओके, एंड फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स वी डोंट नीड ऑल ऑफ देम. वो सारों की हमको जरूरत नहीं है. So what we are going to do is we are going to study this content management system, how to install it, how to use it, and how to set up a website. So basically जो website setup करने का जो process है, it's a 3-step process. Step number 1 होता है you will have to purchase a domain plus domain name and hosting. Okay, एक बार आपने domain name और hosting purchase कर लिया तो we will go to the second step, जिसके अंदर आपका configuration और designing part होता है. Once you're done with second part, we will go to the third step, that is the final step, which is testing and launching the website. ठीक है, तो ये 3 स्टेप का बेसिकली जो है ना वेबसाइट डिजाइनिंग प्रोसेस होता है. लेट अस नाउ प्रोसीड विद स्टेप 1. स्टेप 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे जितने भी लोग परचेस कर सकते हैं, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप एक अपना खुद का डोमेन नेम और होस्टिंग परचेस करें. ओके, जिसके पास है रियली गुड, बहुत अच्छी बात है, बट जिसके पास नहीं है और वाकई में आप सीरियस हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अपना करियर बनाने के बारे में या इसमें प्रैक्टिस करने के बारे में, तो आई वुड रिकमेंड यू गो अहेड एंड परचेज योर ओन डोमेन. अपना खुद के नाम का एक डोमेन परचेज कर लीजिए. इट वोंट कॉस्ट यू मच. ठीक है, $12-13 का कुछ एक डोमेन नेम आएगा और होस्टिंग प्लान्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में. आप ज्यादा नहीं तो 1-2-3 महीने के लिए होस्टिंग प्लान लेके छोड़ सकते हैं. इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल, जस्ट चेक इन द मार्केट. सो दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर्स जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं. बहुत सारे हैं मार्केट में, बट आई हैव जस्ट लिस्टेड सम ऑफ देम, जिसमें नेमचीप है, होस्टगेटर है. मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत सारों ने ये नाम सुने भी होंगे. ओके, चीप डोमेन्स है, 1and1.com है, बिग रॉक है,
XYZ, there are lots of them. Wix आप लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों ने सुना होगा, बट Wix के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो है ना आप अपने हिसाब की वेबसाइट उसके अंदर नहीं बना सकते। उसमें आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे, वो हिसाब से आप उसमें वेबसाइट बना के दे सकते कस्टमर को अगर देना है तो, बट उसके अंदर जो है ना आपको बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। जो SEO हम करेंगे वो SEO पॉसिबल नहीं है, फेसबुक का इंटीग्रेशन आपको पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे इश्यूज होंगे आपको। बिकॉज आई हैड अ कस्टमर हु फेस्ड दिस प्रॉब्लम, तो वी हैड टू मूव फ्रॉम Wix टू सम अदर प्रोवाइडर। ठीक है, तो मेरा जो फेवरेट है, मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो नेमचीप है। व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट फेस्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लास्ट 5-6 years। बट बीच में जो है ना 1-on-1 भी मैंने टेस्ट किया, बट आई फेस्ड प्रॉब्लम। बिकॉज होता क्या है कि जब ईयर एंड होता है तो आपको जो है ना ये अपना डोमेन नेम और होस्टिंग रिन्यूअल करवानी पड़ती है, क्योंकि ईयरली पैकेज पे होता है। एंड आई फेस्ड प्रॉब्लम विद 1&1। उसके ऊपर जो है ना आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनीबॉडी, बट दिस इज व्हाट आई फेस्ड, सो आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। तो 1&1 में प्रॉब्लम क्या हो गया कि दे चार्ज अस मोर। ठीक है, डोमेन नेम था सिर्फ $14 का एंड दे चार्ज अस $74, सो आई हैड टू पे $60 एक्स्ट्रा। So my favorite is Namecheap. You can go and you can do some R&D, and if you find any problems, if you get across any problems, just get back to me, inshallah, in personal chat. I will help you with this. So once you are done with this, what you will do is you will go with second step, that is we will install the CMS, we will install the WordPress, then we will configure WordPress, then we will complete the website designing part. Okay, I'm going a little bit fast because we have to do the practicals. Let us see what is WordPress, who is using it, and how to configure it, and XYZ. Okay, next journey of WordPress. So let's jump into WordPress. WordPress is the most popular CMS in the world, क्योंकि ये 37% जो वेबसाइट्स हैं दुनिया की ये WordPress के ऊपर बनी हुई हैं। The best part is it is free of cost. जैसा आपको Microsoft Word परचेस करना पड़ता है अगर आप पायरेटेड नहीं ले रहे हैं तो, if you are trying to get a license then you will have to pay for license. ऐसे इसमें जो है ना WordPress का लाइसेंस बिल्कुल फ्री होता है, you don't have to pay anything to WordPress. Okay, उसके बाद इसको सेटअप करना आसान है, मेंटेन करना आसान है, इसमें आप कस्टमाइजेशन इजीली कर सकते हैं, आपको कोई HTML की या फिर प्रोग्रामिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास HTTPS है, अगर आपने सर्टिफिकेट परचेस किया हुआ है तो ये वेबसाइट आपकी सिक्योर रहेगी, SEO फ्रेंडली रहेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आज के जमाने के हिसाब से मोबाइल फ्रेंडली भी रहेगी। यानी मोबाइल के ऊपर जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो मोबाइल के हिसाब से खुलेगी, डेस्कटॉप पे जब आप खुलेंगे तो डेस्कटॉप के हिसाब से खुलेगी। इन अ नटशेल इट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, कौन यूज कर रहा है वर्डप्रेस, ये भी तो हमको पता चले ना कि भाई कौन यूज कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े यानी सूरमा जिसको आप बोलेंगे आज के जमाने में, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वो वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। टू नेम सम, उसेन बोल्ट की वेबसाइट है, व्हाइट हाउस की खुद की वेबसाइट है, जो अमेरिकन व्हाइट हाउस है उसकी, यूनिसेफ यूके की वेबसाइट है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी की वेबसाइट है, और सोनी म्यूजिक की वेबसाइट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है। तो आई थिंक दैट सेज ऑल, क्योंकि वो काफी है हमारे लिए कि भाई ठीक है, जब इतनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो यूज कर रही हैं, if all of these big entities are using, then I don't find any problem in using in my own purposes. So I generally use WordPress, okay, because all of those things. Now we will jump into the installation part. Now from here we will start practicals. Let us see the installation part, then we will just have a quick tour of what exactly WordPress looks like after the installation. Okay, then we will have a look at the configuration, then we will have a basic customization, then we will see the admin part. Okay, then we will make the website live by testing it. Okay, so let's now jump into the practical part. I'm just stopping the sharing here so that I can share you the another window. All right, so here we are. So where am I? Okay, I hope all are able to see the screen. All are able to see the screen. Please answer. Yes, all are able to see the screen. Yes. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. It's basically my Chrome window, right? Google Chrome window. Yes, yes, sir. Okay. Yes. Okay. Let's now proceed further कि भाई अब हम WordPress कैसे इंस्टॉल करेंगे। WordPress जब आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर के पास से, सर्विस प्रोवाइडर के पास से जब आप एक पैकेज परचेस करते हैं तो he will give you something called as control panel username and password. ठीक है, तो ये जो सी पैनल आप देख रहे हैं ऊपर, ये कंट्रोल पैनल है। यहाँ से मैं अपने वेबसाइट्स का या फिर मेरे कंट्रोल पैनल का लॉग इन कर रहा हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट लॉगिंग इनटू इट। Once I'm logged in, this is how control panel looks. ठीक है,
ये पेड वर्जन में है, ये जो है ना फ्री का जो है, अगर आप फ्री फॉर एग्जांपल समबडी डजंट वांट टू परचेज, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ओपनिंग फ्री अकाउंट, एक फ्री वेबसाइट आप जो है ना खुद की आप बना के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डायमंड शाकिर के नाम से एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी फ्री करके एक वेबसाइट है, उस पर जाइए, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपका खुद का एक फ्री की वेबसाइट आप बना सकते हैं। ओके, डोमेन नेम एंड होस्टिंग के पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज यू विल नॉट फाइंड अ वेबसाइट विद .com और .net। ये जो नाम का वेबसाइट देखिए आप कैसा ही है, diamondshakir.rf.gd, तो ये वेबसाइट अभी ऐसा बनी थी diamondshakir.rf.gd की। तो इस टाइप की वेबसाइट बनेगी, .com .net या फिर आपकी जो पसंद का जो नाम है वो नाम की वेबसाइट नहीं बनेगी। ओके, इन बोथ केसेस जब आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो दिस इज हाउ इट विल लुक। ये कंट्रोल पैनल ऐसा नजर आता है। मैं इसके कंट्रोल पैनल में जाके बताता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखिए आप सिमिलर कंट्रोल पैनल्स है, यहाँ पे भी सी पैनल है, यहाँ पे भी आपको सी पैनल ही नजर आएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, बेसिकली वी विल लुक एट इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। तो उसके लिए क्या करना है, सॉफ्टएक्यूलस एप्स इंस्टॉलर में जाना है, या फिर सेकंड मेथड क्या है कि आप पूरा नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना वर्डप्रेस यहाँ पे नजर आएगा स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो मैं वहां से इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँ, आई विल गो विद द इजी वे, सॉफ्टएक्यूलस एप्स इंस्टॉलर, ठीक है। ये मेरा कंट्रोल पैनल के अंदर मैं यहाँ पे चला गया। ओके, अब ये फ्री वाले कंट्रोल पैनल में देखिए आप, इसमें भी आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। इफ आई स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सॉफ्टएक्यूलस ऐप इंस्टॉलर। ओके, आई एम ट्राइंग टू गो पैरेलल, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू गो पैरेलल, दोनों पे भी मैं पैरेलली जाके बता रहा हूँ। अब देखिए आप, यहाँ पे भी सॉफ्टएक्यूलस ऐप इंस्टॉलर ऐसा ही है, यहाँ पे भी वैसा ही है, देयर इज नो चेंज, ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। क्या चेंज नजर आ रहा है, यहाँ पे जो ऊपर ये तीन चीजें हैं, इंस्टॉलेशंस, आउटडेटेड इंस्टॉलेशंस और बैकअप्स, वो नजर आ रही हैं मेरे अकाउंट के अंदर। व्हाई? बिकॉज आई हैव अ लॉट्स ऑफ डोमेन्स, बहुत सारे कस्टमर्स के डोमेन्स हमारे पास हैं, इसीलिए ये ऊपर नजर आ रही हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका अकेले का एक ही डोमेन है, एक ही वेबसाइट है, इसीलिए नजर नहीं आ रहा है। तो जब आप परचेस करेंगे नया डोमेन तो आपको ये विंडो आएगी ऐसी। किसी से भी परचेस कीजिए जहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का अकाउंट मिल रहा है, वहां पे जब आप सॉफ्टएक्यूलस ऐप इंस्टॉलर में जाएंगे तो इस तरीके की विंडो मिलेगी। फ्रॉम हियर यू विल जस्ट सेलेक्ट दिस, ठीक है। वर्डप्रेस को मैंने हाईलाइट किया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये इंस्टॉलेशन में चला जाएगा। दिस इज हाउ वर्डप्रेस वेबसाइट लुक्स लाइक। यहाँ से मैं इंस्टॉल नाउ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे एक ही है तो ये यहाँ पे एक नाम लिया। नाउ लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स हियर। आई विल गो हियर, ऑलराइट, सो आई एम ट्राइंग टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस फ्रॉम हियर। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे एक लंबी चौड़ी लिस्ट नजर आ रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं कस्टमर्स के, ठीक है। तो मैं इसको छेड़खानी नहीं करूंगा, आई विल ट्राई टू शो यू एवरीथिंग ऑन अ फ्री डोमेन। ओके, अभी मैं यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कौन सी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास HTTPS है यानी सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है तो आप HTTPS पे करेंगे, नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो HTTP पे छोड़ दें या फिर HTTP www पे डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इट्स वन एंड द सेम। इन चीजों को छोड़ दीजिए, हम अंदर से देखेंगे। यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम देना है, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो भी आप ये पासवर्ड देना चाहते हैं, अभी ये पासवर्ड यहाँ पे आया, मैं इसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा, या फिर आप खुद का देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप खुद का भी पासवर्ड दे ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं मेरा ये दूसरा ईमेल आईडी है, उसका मैंने यहाँ पे एडमिन ईमेल में वो ईमेल आईडी दे दिया है। ओके, ये मैं कुछ भी इंस्टॉल नहीं करूंगा, दीज आर ऑल एडवांस सेटिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, वी विल सी दैट इन एडवांस कोर्स, ठीक है। तो अभी सबको एज इट इज छोड़ते हुए आई विल गो एंड आई विल मेक श्योर दैट आई एम कॉपिंग द पासवर्ड, ओके, एंड आई एम जस्ट इंस्टॉलिंग इट। विद इन 1 or 2 minutes ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। इट्स वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत क्विक और खलास हो गया, 1 minute भी नहीं हुआ। नाउ यू सी 2 things, ठीक है। एक है वेबसाइट का एड्रेस, दूसरा है वेबसाइट के आगे /wp admin करके एक मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहली चीज ये कि आपको जो कंट्रोल पैनल का यूजर नेम पासवर्ड मिला है वो आपके कंट्रोल पैनल का यूजर नेम पासवर्ड है। अभी आप सोच रहे होंगे भाई फिर अभी ये कौन सा पासवर्ड था। ये जो पासवर्ड था ये वेबसाइट को एडमिन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पैनल का वेबसाइट था, वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेशन पैनल का, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज WP admin, ठीक है। तो अभी मैं इस पे क्लिक किया, कुछ नहीं किया, इस पे क्लिक किया, ये वेबसाइट मेरे पास खुल रही है। ओके, ये वेबसाइट खुल गई मेरे पास में, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। दिस इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड बेसिकली, ठीक है, दिस इज वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को ये देखना है वेबसाइट कैसी दिखती है मेरी, तो मैं ऊपर वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, diamondshakir.rf.gd। देखिए आप वहां पे जो सैंपल देखे थे आप, एग्जैक्टली वैसा ही सैंपल आपका यहाँ पे मौजूद है।
मुबारक आपकी वेबसाइट अप हो गई। कितनी देर में? हार्डली विद इन 10-15 मिनट्स। बट दिस इज नॉट हाउ यू वांट दिस वेबसाइट टू लुक। ठीक है, आप इसको बहुत सारी चेंजेस करना चाहते हैं, तो फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू डू दैट? यू आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स फ्रॉम डैशबोर्ड। तो इसका यूजर नेम पासवर्ड याद रखिए आप। इसका मैं एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम दिया था और पासवर्ड में कॉपी कर लिया था। ठीक है, आप वो यूजर नेम पासवर्ड कहीं कॉपी करके रखिए, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, वरना फिर आपको एडवांस कोर्स करना पड़ेगा अगर आप भूल जाएंगे तो। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दिस व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, क्विक टूर हम लेते हैं। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्डप्रेस के ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन सारी की सारी बता रहा है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नाम बता रहा है। ओके, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे विजिट माई साइट, तो ये खोलेगा, ये आपकी वेबसाइट बताएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्लोज अदर्स जस्ट टू avoid any kind of confusions, right? cPanel भी close, ये भी close, okay, right. तो ये हमारी वेबसाइट है जो अभी हम बनाए वर्डप्रेस में, और ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यानी एडमिन कंट्रोल पैनल है। अभी इसमें आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या करना है आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्डप्रेस सो एंड सो इज अवेलेबल बोल रहा है, मतलब जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किए तो वर्जन क्या था, पुराना था, अभी नया वर्जन आ गया है। ओके, तो कैसे करना है वी विल सी दैट इन एट द एंड। ओके, अभी एक क्विक टूर लेते हैं। यहाँ पे माई ब्लॉग है, जो आपकी वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे बताता है। देन दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अपडेट्स। जितने अपडेट्स हैं वेबसाइट के अंदर आपके, वो यहाँ पे बताएगा। नंबर 4 नंबर बता रहा है। द मोमेंट आई टेक माई माउस ओवर इट, मेरे को बता रहा है 1 वर्डप्रेस अपडेट अवेलेबल, 1 प्लगइन अपडेट अवेलेबल, 2 थीम्स अपडेट्स अवेलेबल। ओके, तो थीम क्या होती है वो देखते हैं। यहाँ पे जो है ना, जो आप कमेंट्स, कस्टमर के कमेंट्स आते हैं, कई वेबसाइट्स पे आप देखे होंगे कमेंट्स, वो कमेंट्स यहाँ पे, अगर कोई नया कमेंट आपके अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है तो यहाँ पे बताएगा। ओके, ऑल ऑफ दोज पीपल जो चैट कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी चैट विंडो नहीं खोलना चाहता क्योंकि ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो भी चैट्स हैं मैं एंड ऑफ द सेशन देखूंगा, देख के उसका रिप्लाई करूंगा। देन फ्रॉम हियर यू सी समथिंग एट्स न्यू। जब मैं न्यू पे लेके जा रहा हूँ तो मेरे को पोस्ट, मीडिया, पेज, यूजर वगैरह वगैरह बता रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से, एक शॉर्टकट है, यहाँ से भी जा सकता हूँ। ऑन द राइट साइड दिस इज माई एडमिन प्रोफाइल। यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल एक्सेस कर सकता हूँ या लॉग आउट कर सकता हूँ। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शंस हैं, स्क्रीन ऑप्शंस पे जाके मैं स्क्रीन ऑप्शन सेट कर सकता हूँ। आई एम लीविंग इट एज इट इज, उसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना है भी। अगर हेल्प होना है तो यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ मैं। ओके, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली इज रफ लेआउट ऑफ द एडमिन ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड है। अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो ये विंडो मेरे सामने जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे देखिए, अभी अपडेट हो गया, यहाँ पे 4 बता रहा है। ये 4 क्या है, सेम ये जो 4 यहाँ पे बता रहा था वही 4 यहाँ पे भी बता रहा है। दीज आर अपडेट्स। दिस वाज होम। ओके, ये होम है जहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं। इट्स जस्ट लेआउट, मेरे को एक वेबसाइट के अंदर मेरे क्या क्या है उसका एक रफ जो है ना, एक आइडिया देने के लिए एक डैशबोर्ड मेरे सामने है। ओके, सो दिस डैशबोर्ड प्रेजेंट्स मी विद ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन। जब हम एसईओ वगैरह करेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, और बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है ना क्विक ग्लांस के लिए प्रेजेंट की जाती है। ओके, see it is asking me to customize my website. We will do that later. Then I can click on updates. I can see the updates. Actually, free websites will be really slow, guys. So you will have to bear with it. ठीक है, you will have to bear with it. Right? जो अपडेट्स हैं, कौन कौन सी अपडेट्स हैं यहाँ पे मेरे को बता रहा है लिस्ट। इसको मैं सिलेक्ट करके जो है ना यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ, बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट गोइंग टू अपडेट दैट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। उसके बाद है पोस्ट्स। पोस्ट क्या होती हैं और एक पेज क्या होता है, मीडिया क्या होता है, उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कोई भी न्यूज़ की वेबसाइट खोलिए आप। एग्जांपल जो है ना, दिस इज द बेस्ट, क्योंकि ये जो है ना वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ओके, तो ये सियासत न्यूज़पेपर की वेबसाइट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरे का पूरा एक न्यूज़ वेबसाइट है। ठीक है, उसके ऊपर मेरे को छोटे छोटे सेक्शंस नजर आ रहे हैं। ये एक अलग सेक्शन है यहाँ का। ठीक है, फिर यहाँ का एक अलग सेक्शन है जिसका नाम है फीचर्ड न्यूज। यहाँ पे फिर साउथ इंडिया का एक अलग सेक्शन है। फिर यहाँ पे टॉप स्टोरीज करके एक सेक्शन है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप, ये पूरा मेनू एक अलग है मेरे पास। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक चीज, एक एक न्यूज आर्टिकल यहाँ पे मौजूद है। तो ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स आर बेसिकली पोस्ट। अगर मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे वो पोस्ट मेरे सामने कंप्लीटली डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये कैसा बना हुआ है, सिंपल। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके एक पोस्ट देख रहे हैं आप, सेम हेलो वर्ल्ड इज बीइंग डिस्प्लेड हियर। सिर्फ एक ही पोस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही पोस्ट नजर आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। नीचे बाकी का जो है ना, जो दूसरे सेक्शन है वेबसाइट के, वो सेक्शंस बता रहा है। तो यहाँ पे सिंपल पोस्ट है। पोस्ट के साथ साथ हम एक चीज देखते हैं कि इसमें कमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे बताएगा। ठीक है, ये पब्लिश्ड ऑन सो एंड सो डेट, सो एंड सो टाइम, दिस वाज पब्लिश्ड बाय दिस पर्टिकुलर यूजर। ठीक है,
दीज आर द कैटेगरीज। टॉप स्टोरीज नाम की कैटेगरीज में है। टैग्स जो है ना, इसको जैसा कपड़े के ऊपर एक टैग होता है कि भाई सो एंड सो ब्रांड का एक कपड़ा है, तो वैसा यू आर गोइंग टू टैग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन लेमन टर्म्स, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है ना इस पे टैग्स लगा सकते हैं ताकि सर्चिंग में इजी हो सके, ठीक है, सर्चेबिलिटी बढ़ सके। देन व्हाट, लेट अस प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे आप टैग्स देख रहे हैं, ये टैग्स यहाँ पे हैं, ओके। यहाँ पे आप कैटेगरीज देख रहे हैं, ये जो कैटेगरीज है, माउस पॉइंटर जिसके ऊपर मैं लेके गया माउस पॉइंटर अपना, ये कैटेगरीज हैं। ऐसे आप कैटेगरीज बना के एक पोस्ट को उसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे ये पूरे पोस्ट हैं। यहाँ पे ऐड न्यू में चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ या यहाँ से भी कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल जस्ट ऐड ए न्यू पोस्ट, ठीक है। बाय द वे यू गाइज हैव टू डू ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ये सब कुछ आप करेंगे एंड यू विल रिपोर्ट मी कि भाई आपको क्या दिक्कतें पेश आई, आप सही कर सके या नहीं कर सके। ओके, नाउ इट्स आस्किंग मी टू ऐड ए टाइटल। आई एम पुटिंग माय टाइटल एज फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट आई एम पुटिंग सम गार्बेज, ओके, एंड देन आई एम पब्लिशिंग इट। द मोमेंट आई पब्लिश इट, अभी यहाँ पे देखें आप आके, यहाँ पे कुछ तो भी है, कुछ भी नहीं है, जैसे सैम्पल पेज बता रहा है मेनू में। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो सी अनकैटेगराइज्ड में ये पोस्ट फर्स्ट पोस्ट ऊपर आ गया, क्योंकि हमारे पास कैटेगरीज नहीं है तो अनकैटेगराइज्ड बता रहा है। इनके पास कैटेगरीज नीचे रखी हुई है, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द लेआउट, हाउ यू आर सिलेक्टिंग द लेआउट। जो आपकी थीम होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। प्रेजेंटली जस्ट आप सिर्फ इतना देखें कि हम अगर कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वेबसाइट पे कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। सो वी हैव क्रिएटेड द फर्स्ट पोस्ट एंड वी हैव सेव्ड इट, इट्स ऑलरेडी लाइव। लेट्स गो बैक, ठीक है। तो हमने देखा पोस्ट क्या है, पोस्ट के अंदर कैटेगरीज क्या है, टैग्स क्या है। उसके बाद मीडिया, जो फाइल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फोटोज हैं, ये नहीं, ये तो ऐड है। ये जो फोटोज देख रहे हैं आप ऊपर, ये सारी की सारी जो है ना मीडिया के अंदर स्टोर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड अ फाइल टू मीडिया। यहाँ से जो भी मेरे को ऐड करना है मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर सकता हूँ। तो अभी फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग लेट अस से दिस, ओके। ये मैंने ऐड कर दिया। आई विल गो बैक टू द पोस्ट। जो पोस्ट मैंने क्रिएट किया था कौन सा था, फर्स्ट पोस्ट। इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। एडिट करके अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फोटो डालूंगा। I'm unable to see some things here guys, ओके। यहाँ से मैं इमेज डाल रहा हूँ। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया ना वर्डप्रेस इसीलिए लोग यूज करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी। देखिए यहाँ पे मेरे को अपलोड बोल रहा है, चाहे तो मैं अपलोड कर सकता हूँ फोटो, या फिर मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया तो मेरी लाइब्रेरी में है, ओके। हियर इज द लाइब्रेरी। ये जो हम फोटो अभी अपलोड किए थे वो यहाँ पे आ गई। आई एम सेलेक्टिंग दिस, देन आई एम जस्ट अपडेटिंग इट, ओके, दिस इज डन। अभी देखिए यहाँ पे फोटो नहीं है, इमेज नहीं है। द मोमेंट आई एम रिफ्रेशिंग I get the image here. Come on, quick. Okay, by the time it updates the image, let me show you something else. Okay, so let's go back. Okay, we have seen media. Now what are pages? Pages क्या होते हैं? Pages जो है, ये जो आप complete देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, eBay पर एक पेज है, पॉलिटिक्स एक पेज है, एंटरटेनमेंट एक पेज है। बस यूं समझिए कि एक पेज के अंदर बहुत सारे पोस्ट आप रख सकते हैं, ओके। एक पेज में बहुत सारे पोस्ट आप रख सकते हैं। वेबसाइट का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कैसा होता है, वेबसाइट इज अ कंटेनर। आपका एग्जांपल के लिए जो है ना, आपके ऑफिस में फाइल्स होते हैं। फाइल्स कहाँ पे रखते हैं आप, एक फाइल कंटेनर के अंदर रखते हैं। फिर उसके अंदर छोटी फाइल्स होती हैं। हर फाइल के अंदर फिर छोटे पेजेस होते हैं। तो वैसे ही जो है ना, हर पोस्ट एक पेज है, हर आर्टिकल एक पेज है। और वैसे ही जो है ना, हर आर्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में या एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर रख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पॉलिटिक्स का है, एंटरटेनमेंट है, बिजनेस है, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज। तो ऐसे पेजेस बना के हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ये सारे के सारे पोस्ट हम पब्लिश कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे सैम्पल पेज एक है, ये जो प्रेजेंटली आपके सामने आ रहा है, देखिए आप, इमेज आ गई यहाँ पे। ये सैम्पल पेज है, जो फर्स्ट पेज है ये सैम्पल पेज है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो दिस इज द सैम्पल पेज, ठीक है, दिस इज द सैम्पल पेज। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मेरे को अबाउट अस पेज बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू क्रिएट एन अबाउट अस पेज, यहाँ पे मैं आऊंगा पेजेस में, आई एम डूइंग नथिंग, ऐड न्यू किया मैं, अबाउट अस, ओके।
typing something here, I'm just publishing it, I'm doing nothing, right? अभी अगर मैं यहाँ जाके देखूं वेबसाइट पे, तो मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे अबाउट अस आ गया. ओके, द मोमेंट मैं अबाउट अस पे क्लिक करूं, द अबाउट अस पेज इज हियर. इफ आई वांट टू गो बैक टू द होम पेज, हियर इज द होम पेज. ठीक है, इसमें अबाउट अस नहीं है, अबाउट अस यहाँ पे ऊपर अलग से लेके आया हुआ है. ओके, so this is how you build a website on WordPress. It's very simple, very easy, very quick and very fast. ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, ये कौन सी बड़ी बात है बच्चों का खेल है. Once you start practicing, you'll come across some problems, some issues आपको आएंगे. Okay, you please get back to me, I'll explain you how to overcome those issues. So same thing है, सारे के सारे pages यहाँ पे display होते हैं. If you want to add new, you can add new from here or you can add new from here. Then you have comments. ठीक है, यहाँ पे जो comments बता रहा है ना, सेम ये यहाँ 0 बता रहा है, वही कमेंट्स यहाँ पे भी हैं. ये कमेंट्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए एक न्यूज़ वेबसाइट से बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती. ओके, लेट मी जस्ट गो एंड ओपन एनीथिंग व्हिच हैज लॉट ऑफ कमेंट्स. ओके, ओके, लेट अस सी दिस वन हैज एनी कमेंट्स. आई डोंट सी एनी कमेंट्स. सी, यू सी दिस सेक्शन हियर, इट शोज 0 कमेंट्स. ठीक है, अगर कमेंट्स होंगे, लेट अस पुट अ कमेंट हियर. अभी हम एक काम करते हैं, नो कमेंट्स. अभी मैं यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ, टेस्टिंग कमेंट. तो जो भी बंदा आपके वेबसाइट पे आके आपके पोस्ट के ऊपर या पेज के ऊपर कमेंट डालता है, वो कमेंट अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, वो कमेंट अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, वो उसको आपको यहाँ पे नजर आएगा. सी, कमेंट्स में जाइए, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर का कमेंट नजर आया. इसको अगर आप मैं अप्रूव कर दूं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको अप्रूव कर दूं या अनअप्रूव करूं, अपने हाथ में है. द मोमेंट आई अप्रूव इट, इसको क्लिक करिए, बल्क एक्शंस में जाइए, अप्रूव, अप्लाई. देन व्हेन आई कम हियर एंड सी, आई कैन सी द कमेंट. सी, 1 कमेंट. ओके, तो इसी तरीके से ये कमेंट्स का सेक्शन है. उसके बाद है मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, अपीयरेंस का. वी आर लेफ्ट विद ओनली 14 मिनट्स और मे बी 15 मिनट्स, सो लेट्स कवर दिस अप वेरी फास्ट. अपीयरेंस में जो है ना, आप उसका लुक एंड फील पूरा चेंज कर सकते हैं. अभी ये जो थीम है ये सिलेक्टेड है. थीम्स जो है ना, एक वेबसाइट को लुक एंड फील देती हैं. फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट है, बाय द वे आई एम नॉट पेड बाय दीज गाइज, दीज न्यूज़पेपर गाइज, मैं जस्ट एक अपने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. ओके, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक वर्डप्रेस में बनी हुई वेबसाइट है. दैट इज व्हाई इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो अप. ठीक है, इसको फॉलो करने के लिए आसानी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट. तो हमारी वेबसाइट को हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज करना है, तो क्या करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में आएंगे, आके आई एम जस्ट एक्टिवेटिंग दिस थीम 7013. द मोमेंट आई डू दैट, और जाके मैं अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, सी एवरीथिंग इज चेंज्ड, एवरीथिंग इज चेंज्ड नाउ. ओके, द होल वेबसाइट इटसेल्फ इज चेंज्ड. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू चेंज थीम्स. ओके, now how to go into much details, advanced customizations and all that is out of the scope of these basics. But once you start playing with it, inshallah it will be very easy for you. आप खुद कोशिश कीजिए, it's very easy. WordPress is the easiest thing. If you are stuck or if you are getting stuck somewhere, let me know, inshallah I'll be more than happy to help you. Okay, let us now see what are widgets. Widgets जो है ना, ये आप जगह जगह पे जो देख रहे हैं, ये अलग अलग sections है. यहाँ पे कुछ ये जो एरिया बता रहा है 1.5 मिलियन, ये सारे सोशल फॉलोइंग है, हेल्थ का एक सेक्शन है. इन तमाम चीजों को हम बोलते हैं विजेट्स. एंड दीज विजेट्स कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट एरियाज. ठीक है, तो एक वेबसाइट में कौन कौन से मेन एरियाज होते हैं, ये जो एरिया आप ग्रे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फूटर. ओके, फूटर जहाँ पे फूट होता है वहां पे. दिस इज कॉल्ड एज हेडर, जो टॉप है ब्लू वाला, दिस इज कॉल्ड एज हेडर. और इसके नीचे ये जो आप एक मेनू बार देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेविगेशन एरिया या नेविगेशन मेनू. एंड दिस इज पर्टिकुलरली द होल वेबसाइट. The whole website is called as this is the body area of the website. Okay, and the things that you see here in the right side are generally appearing in the right side, and some websites have things on left side. Left side पे भी थोड़े कुछ websites में कुछ areas होते हैं, उसको हम बोलेंगे left area या right area. ये body है, main body. ये जो है ना ऊपर sticky header इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो चिपक गया है. ठीक है, मेनू चिपक गया है ऊपर, तो this sticky menu is called as a sticky header. और ये है basically the header part, and this is, as I said, navigation menu, and at the bottom you have footer. Okay, so these are all the areas that you can simply configure. यहाँ पे आके आप देख रहे हैं footer 1 में कौन सा आना है, साइड बार में कौन सा आना है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ओके, you just start playing around with it and make changes, save it, come to your website and see how it looks. ठीक है, कुछ भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि anyways you can do it 100 times. After all, it's a free
website, so you can try, you can do practice. Okay, मैंने फिर से अपना theme change किया and I'm back to the previous theme, right? So here is this footer area. Okay, let me go a little bit fast. ऐसे मेनूज हैं, जो मेनू आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर. ओके, इस टाइप में बहुत सारे मेनूज हैं इसमें. देखिए यहाँ पे एक मेनू है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे एक मेनू निकल के आ रहा है. फिर वहाँ नीचे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये यहाँ ये जो सारी चीजें हैं ये मेनू है, एक कंप्लीट मेनू है. ठीक है, जैसा होटल का मेनू होता है वैसा यहाँ बहुत सारे मेनूज हैं. इन द सिमिलर वे यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ मेनूज फ्रॉम हियर एंड यू कैन चेंज वेबसाइट बैकग्राउंड फ्रॉम हियर. And if you are a programmer, you can do theme editing. Okay, I don't prefer you do that. Okay, that is very very advanced topic. Okay, let's now see what are plugins. Plugins जो होती हैं वो एक वेबसाइट में एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए काम में आती हैं. फॉर एग्जांपल, अभी मेरी वेबसाइट में मेरे को कुछ प्लगइन ऐड करना है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है. आई कैन ऐड दैट फंक्शनैलिटी. क्या फंक्शनैलिटी नहीं है मेरे पास में? आई डोंट हैव अ फॉर्म. अगर मेरे को जो है ना यहाँ पे अबाउट अस में जाके कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म देना है, आई डोंट सी दैट फॉर्म एनीवेयर. ओके, that is not included in WordPress. But the best part is WordPress comes with lots and lots and lots of free plugins. तो मैं plugins में जाऊंगा, add new plugin करूंगा, या फिर plugins में जाने के बाद यहाँ से भी add new कर सकता हूँ मैं. add new पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में it will bring me the plugin store. जैसा ऐप स्टोर होता है ना भाई बेसिकली, ठीक है, गूगल का है या फिर आईफोन का है, वैसे इसका भी एक अपना पर्सनल स्टोर है, इट्स फ्री. ओके, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म मार रहा हूँ. लेट मी जस्ट सी. Okay, I'm installing the first one because it looks very simple to me. Okay, installation failed about class zip. You see, in free websites you face these kind of problems. जो free websites होती हैं उसके अंदर बहुत सारे limitations होते हैं. Okay, now it is installing. Second time मैंने कोशिश की, it's not installing. Anyways, okay, you just try to install a form, contact form. Contact form adds additional features to my website. Okay, it will give features for my visitors to contact me personally. Okay, let's not go further. अभी हम यहाँ से ज़्यादा आगे बढ़ने के बजाय काम करते हैं. You just see this legalconsultants.in हमारी वेबसाइट देख लीजिए आप. इसमें यहाँ पे हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड किया हुआ है. ओके, अब ये फॉर्म हम क्या किए थे? वेबिनार रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ये जो फॉर्म है ये हम गूगल का फॉर्म इसमें इंटीग्रेट किए. ऐसे ही जो है ना यहाँ से आप प्लगइन्स डाल के प्लगइन्स के थ्रू भी कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स बेसिक. फॉर दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट इज इनफ. ओके, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो. सो इफ यू आर अ प्रोग्रामर यू कैन डू प्लगइन एडिटिंग. ठीक है, आई डोंट रिकमेंड यू डू दैट until unless you are a programmer and you know what you are doing. Okay, उसके बाद देखते हैं यूजर्स. यूजर्स में आप क्या करेंगे? देखिए आप क्या बोल रहा है ये, डोंट डू एनीथिंग. ये प्लगइन एडिटर में आने के बाद में वो हमको एरर दिया था. सो दिस आर द यूजर्स. जो वेबसाइट पे अभी हम एक ही यूजर है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है ना हर आर्टिकल के नीचे नाम एक अलग अलग आ रहा है. सी, न्यूज डेस्क, दिस इज अ यूजर. एंड वेयर डू आई सी? ओके, न्यूज डेस्क अगेन. ओके, यू रिमेम्बर हमने अभी कुछ चेक किया था तो एक हमको दूसरा नाम बताया था. ओके, सी पासेस इंग्लिश, सी SM बिलाल. तो ये जो भी है ना ये यूजर्स हैं वो यहाँ से क्रिएट किए हुए हैं. आप यहाँ पे यूजर क्रिएट करने के बाद उनको रोल्स असाइन कर सकते हैं. ओके, मैं एक नया यूजर क्रिएट कर रहा हूँ. यहाँ पे आने के बाद में इनका रोल, यहाँ पे आपको ये रोल्स नजर आएंगे. बेसिकली हर कोई सब्सक्राइबर होता है. ओके, एडमिनिस्ट्रेटर आप किसी को भी नहीं देंगे. अगर कोई मल्टीपल यूजर्स हैं आपकी वेबसाइट पे, जैसा ये सियासत की वेबसाइट पे बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, तब आप ये करेंगे, नहीं तो यू विल नॉट डू दिस. ओके, देन यू हैव योर ओन पर्सनल प्रोफाइल. जो यहाँ से आप प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हैं. ओके, वही प्रोफाइल यहाँ से भी एक्सेस हो सकती है. देखिए सेम पेज खुल रहा है. ओके, यहाँ से आप कलर्स, ये इसके कलर्स अगर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं. ओके, दिस इज फाइन. ओके, यू कैन डू ऑल दैट. यहाँ पे आके आपके पर्सनल डिटेल्स आप डालिए. फिर अगर पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं करिए. फिर आप अपडेट प्रोफाइल कीजिए, आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी यहाँ से. देन यू हैव टूल्स हियर. ओके, जनरली वी डोंट यूज टूल्स क्योंकि इसमें जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सारी चीजें होती हैं. दोज आर ऑल टॉपिक्स ऑफ हायर स्टैंडर्ड, जिसमें आपको एडवांस्ड कोर्स जब आप करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ओके, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, you will see a site health and all that stuff. Then you have settings. Let us have a look at settings. क्या क्या settings है इसमें? यहाँ पे आके आप ये देख रहे हैं माई ब्लॉग बता रहा है अभी मेरी वेबसाइट का नाम. मैं वो नहीं कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ डायमंड्स वेबसाइट. डायमंड्स वेबसाइट, दिस इज माई पर्सनल वेबसाइट. ठीक है, ये
वेबसाइट का एड्रेस है, इसको चेंज नहीं करना है। ये एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल आईडी है जो वहां पे हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिए थे, वो यहीं पे आ गया। अगर मैं एनीवन कैन रजिस्टर यहाँ पे दिया तो मेरे पास यूजर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आई एम नॉट गिविंग दिस ऑप्शन। और यहाँ पे टाइम जोन सब सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक सेट कर सकते हैं। देन आई विल जस्ट सेव द चेंजेस, एंड वंस आई सेव द चेंजेस एंड आई जस्ट रिफ्रेश द वेबसाइट, सी डायमंड्स वेबसाइट, दिस इज माय पर्सनल वेबसाइट। ओके, अब आपको डाउट आ रहा होगा भाई यहाँ पे ये इमेज डाला हुआ है, आपके पास इमेज नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ, दैट कैन बी डन फ्रॉम कस्टमाइजेशन। यहाँ से नहीं कर सकते, उसको कस्टमाइजेशन से करना पड़ता है। ओके, देन यू हैव राइटिंग सेटिंग्स। ओके, कौन सी कैटेगरी में आपके आर्टिकल्स जाएंगे, क्या है, यू जस्ट गो थ्रू दिस। ओके, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अगर फिर भी कुछ डाउट है, यहाँ पे सीधा हेल्प है, हेल्प में आप जाके जो है ना इसके ताल्लुक से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रीडिंग सेटिंग्स है, रीडिंग सेटिंग्स में आपको चेंजेस करना है। अगर मेरे को ये जो अभी बता रहा है वेबसाइट पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दिस इज माय ब्लॉग पेज, ठीक है। ब्लॉग पेज की कहीं भी लिंक नजर नहीं आ रही है, राइट, बट इट इज डिस्प्लेइंग मी द ब्लॉग, मींस इट इज डिस्प्लेइंग मी ऑल द लेटेस्ट पोस्ट्स इन अ सिंगल पेज। जो मेरे पेजेस मैंने बनाए हैं वो पेजेस अलग से बता रहा है। तो अगर मेरे को फॉर सपोज अबाउट अस पेज मेरे को फर्स्ट पेज करना है, आई डोंट वांट ब्लॉग, तो मैं क्या करूंगा, आई विल चेंज इट फ्रॉम रीडिंग, यहाँ पे आके स्टैटिक पेज ले लूंगा एंड यहाँ पे आके आई विल select whatever page I want to make as a default page and I'll just save it. Now if you see, अगर मैं मेरी वेबसाइट के नाम पे क्लिक करता हूँ तो it's going directly to about us page. Okay, for the time being I'll just change it to website latest posts. Let us see what it does. I'm just clicking again. Oh my goodness. Okay, let it refresh. Okay, it will not display about us page, it will display something else. Okay, see, first post is being displayed. So that's how you configure the website. Discussion is there. अगर आपके पास ब्लॉग है तो डिस्कशन की सेटिंग्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एनीवेज जब आप अगर इस लेवल की वेबसाइट बना रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल टेक माय हेल्प, तो आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। एट दिस मोमेंट यू डोंट नीड ऑल ऑफ दिस सेटिंग्स, ओके, लीव देम एज इट इज। दिस इज मीडिया, मीडिया में आपको सेटिंग्स देना है, फॉर एग्जांपल थंबनेल साइज कितना चाहिए, मीडियम साइज कितना चाहिए, लार्ज साइज कितना चाहिए, फाइल साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, and when you organize uploads in month and based categories, then it will display something like this, you know. यहाँ पे इसके आगे क्या करेगा वो 2020, उसके बाद मंथ का नाम लाएगा, उसके अंदर फिर फाइल का नाम लाएगा। ओके, सो दैट्स गुड प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं कि भाई कौन सी फाइल कब अपलोड हुई थी पता चले तो यू कैन डू दैट। ओके, परमालिंक्स जो है ना, यू डोंट हैव टू गेट इनटू इट। यहाँ पे जो नाम बता रहा है, ठीक है, sifsiyasat.com/ ऐसा बता रहा है। ये ऐसा नहीं बता के ऐसा भी बता सकता है। देखिए यहाँ पे जो बता रहा है ना, ahmedshakir.com, ये देखिए आप जो मंथ एंड ईयर में अगर हम सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे प्रीवियसली, तो ऐसा उसको कैटेगरिकली स्टोर करके रखेगा वेबसाइट। जनरली इस तरीके के नाम बताता है, ओके, डेट एंड टाइम के साथ में। लेकिन अगर फॉर सपोज मेरे को जो है ना पोस्ट का नाम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अभी फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लियर अबाउट अस मेरे को बता रहा है बिकॉज इट्स ऑलरेडी टेकिंग द परमालिंक प्रॉपर्ली। नहीं तो यहाँ पे मैं पोस्ट नेम दूंगा तो वो पोस्ट नेम के साथ आएगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, सिंपली लीव दिस, डोंट डू एनीथिंग, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी जो होती है वेबसाइट्स पे वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से आप एक नया प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करके उसके अंदर आप जो है ना बेसिकली बॉटम फुटर में आप जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी रख सकते हैं। जनरली बहुत सारी वेबसाइट्स, देखिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, मैं इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूंगा तो ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा डॉक्यूमेंट मेरे सामने खुलेगा। इन द सेम वे इफ यू वांट टू हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी यू कैन हैव इट समवेयर, रखिए जो है ना आप प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। ये एक पेज क्रिएट कर देगा आपके पेजेस के अंदर। अगर मैं फॉर सपोज क्रिएट न्यू पेज कर रहा हूँ तो इट इज क्रिएटिंग अ प्राइवेसी पॉलिसी। ये देखिए हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। मैं पब्लिश कर रहा हूँ, कुछ भी पढ़ नहीं रहा हूँ। लेटर ऑन इफ यू वांट यू कैन डू दैट, ओके। सो लेट मी रन फास्टर because we are left with only 2 minutes. So this is all about a fast, very fast 30,000 feet overview of what WordPress looks like, how you can design a website within 30-35 minutes, ठीक है। इतना तेजी से आप वेबसाइट शायद मेरे ख्याल से आप एक वर्ड की फाइल भी नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आ गई, ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी थी हम जो बनाए, ओके। तो ये मेरी वेबसाइट इस तरीके से बन गई। आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। नाउ यू मे बी आस्किंग, भाई आप तो बहुत अच्छी अलग सी वेबसाइट बना ली है, देन यू आर नॉट शोइंग दोस थिंग्स टू मी। Yes, of course. For this, you need experience. For this, you need advanced knowledge of WordPress. इस तरीके की वेबसाइट कैसे बनानी है, क्या है, that is covered in advanced topics. But for the sake of this particular module, हम जो है ना इसके अंदर ये जो write-ups हैं
जिसको हम बोलते हैं कॉपी राइटिंग, ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर हम इसी वेबसाइट के अंदर थोड़ी सी कॉपी राइटिंग करके कुछ चीजें भरेंगे। तो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन से कॉपी राइटिंग के ताल्लुक से वी विल लुक एट ऑल ऑफ देम once we go to that topic. With that, we have finished this WordPress topic, but we have something else. Okay, please hold on, don't go anywhere. So I'm stopping the sharing of this screen and I will share the other screen with you guys. Okay, so with that you have your website online. जैसा आप देखें हम लाइव वेबसाइट पे काम करें, सेम वे आप भी लाइव वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट इज remaining or what we have done till now. So a quick recap of what we have done today. We have seen the basic concepts, we have seen the basic web designing using CMS, content management system. जो सबका वर्ल्ड का जो सबसे मशहूर CMS है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में हम कैसा काम करना है देखिए, वर्डप्रेस को कैसा कॉन्फ़िगरेशन देते हैं वो हम देखें, बेसिक कस्टमाइजेशंस वर्डप्रेस के कैसे करते हैं हम देखें, मतलब हम we changed the template, then we created some pages, we created posts, we have seen how things work out in WordPress. उसके बाद हम अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च भी करके देखें। लॉन्च करने का कुछ नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन माय वेबसाइट, यू विल गो डायरेक्टली टू योर वेबसाइट। जनरली वेबसाइट लाइव होती है, ओके, बट इन सम केसेस जहाँ पे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, वी पुट देम ऑफलाइन। अभी जैसा आप रीगल कंसल्टेंट्स की वेबसाइट देखें अभी हमारी, तो इट इज शोइंग दैट यू नो वी आर वर्किंग ऑन दिस वेबसाइट। तो बेसिकली दैट्स ऑफलाइन, अभी पूरा कंप्लीट हमने कंटेंट उस पर अपलोड नहीं किया है, ठीक है, it's basically offline. So you can put it offline. Those are advanced topics. We will cover it in advanced course. That's not part of this particular course. For the sake of our digital marketing course, this is enough. Okay. तो हम इसमें आगे फिर वेबसाइट के अंदर SEO है और दूसरी चीजें हैं जो बाकी के दो हमारे कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर जो दूसरे दो मॉड्यूल्स हैं उसमें हम कवर करेंगे. We will cover those things in next modules inshallah. So if you have any doubts, you can contact me on WhatsApp or Telegram, okay, because the time is not permitting me, otherwise I would have taken questions right away. Okay, then this is the assignment. This is the most important part. I am seeing that you know the participants have nearly half today. I don't know why. Maybe people are enjoying something, or maybe they are busy with something. Maybe they are thinking that we will look at the video and we can just do it. It's really good. I really appreciate the people who have attended this session today. क्योंकि जो लाइव इंटरेक्शन या फिर लाइव आप जो देख सकते हैं, जो डाउट्स आपको लाइव में आते हैं, वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आपको नहीं आते हैं. इन एनी वेज, फॉर पीपल हु हैव नॉट जॉइन्ड टुडे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट topics, otherwise you may be missing a lot. Okay, you may be missing a lot. So with that, this is the assignment for today. Please make a note of this assignment. You either have to purchase a domain or get a free domain. ठीक है, फ्री डोमेन कहाँ से लेना है मैं आपको बता दिया, या फिर आप डोमेन परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे से पहले कंसल्ट करिए, उसके बाद में डोमेन परचेस कीजिए, अदरवाइज यू विल बी एंडिंग अप पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो उसके बाद आपको सेकंड स्टेप पे जाना है, चाहे फ्री डोमेन हो या फिर आपका खुद का जाती परचेस किया हुआ डोमेन हो. यू विल इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर वर्डप्रेस. ठीक है, इंस्टॉल करेंगे. कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, सिर्फ वेबसाइट का नाम बदलना है और थोड़ी सी चीजें हैं. आप अपनी वेबसाइट जो भी है नॉमिनल वेबसाइट, उसको लॉन्च कीजिए एंड देन शेयर योर डोमेन नेम सो दैट इट कैन बी शेयर्ड विद ऑल. ठीक है, जो आइडियाज हैं हम आपस में शेयर करके एक बेहतरीन डोमेन नेम, एक बेहतरीन वेबसाइट हम बना सकते हैं. एंड प्लीज कंप्लीट दिस असाइनमेंट बिफोर नेक्स्ट सेशन, दैट इज डे आफ्टर टुमारो. सो डे आफ्टर टुमारो वी विल बी लुकिंग एट सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज कॉपी राइटिंग. ठीक है, कॉपी राइटिंग के थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या चीज कैसा राइट करना है, क्या रूल्स क्या लॉज हैं उस ताल्लुक से, वो हम देखेंगे. ओके, आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. यू डोंट हैव टू बी अ राइटर, आपको बुक लिखने वाला राइटर नहीं बनना है, बस स्मॉल थिंग्स इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. So I have a couple, basically 3 announcements. Okay, basically 3 announcements. Announcement number 1 is regarding the suggestions. I really appreciate people who are giving me suggestions, and I really welcome all suggestions. Because of your suggestions, we are able to improve in the course. Okay, can we have the mics on mute, please? Okay, so but one special request regarding the suggestions, and that is please try to make your suggestions personal to me in my chat window. क्योंकि हम कोर्स के दौरान में अगर कोई सजेशंस डिस्कस कर रहे हैं तो there are many things happening at the time. One is it's being recorded and it will not be looking good or professional. Okay, so if it is a private window conversation, that's really good. Inshallah, I'll take up your suggestion. If it is implementable, alhamdulillah, I'll go ahead and implement it. Okay, and I really appreciate people who are giving me suggestions. Thank you very much. Second thing is, for those people who have their fees due, I request you all to please clear your fees before your next module, that is day after tomorrow. At least try to make
partial payment because we have already completed 4 modules. ठीक है, we have already completed 4 modules. 15 modules की हम आपसे promise किए थे, उसमें से तकरीबन we have completed 30 to 40% of the course. Okay, so we have already shown you the backbone of digital marketing, which I was not supposed to show because people do not show that until and unless you pay full fees. Okay, so because I am a team growing now, so I have to pay other people also. We have to take care of other things, and that comes with the next announcement, that is announcement number 3, LMS. LMS क्या है? Learning Management System है. जो भी आप files access कर रहे हैं वो एक particularly just sharing के through access कर रहे हैं. But as I promised, you will have access to the content for 6 months. But let me extend my offer to all of you. Whoever has paid the full fee, they are going to get the access for the whole material for 1 year, and that too on LMS. तो LMS क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ. अभी हम we were working on LMS. Okay, just give me a second. I'll show you what is LMS. उसमें आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप एक्सेस ले सकते हैं, and only people who have made full payment of the fees are going to get access to the LMS for 1 year. For partial fees payments, you know, until and unless the fees is cleared, we may not be able to give you the full access because, as I said, we have a team who is now working on all of these things. Okay, so these were the 3 announcements. So please try to complete the assignment before the next class, and for those people who have not made the payments, please pay your fees before next class so that we can proceed further. And I'm extremely sorry about this, but I have to be a little bit rude. हो सकता है the team will block your access to these classes if you are not paying the fees by next class. Okay, so a humble request. I want you all to be with me. I want you all to learn something from me. But as I said, you know, we have a team. We have to take care of them. We are paying them. So please cooperate in this and make sure you pay the fees before the next class so that we can proceed further. Okay, and let me show you what is LMS and how you are going to access it. I'll just take a couple of minutes because we are already running short of time. हमारा time already हो गया है. So let me just show you what is LMS. Okay. So here is the sharing. I'm sharing the screen now. We will go with LMS. Okay. Okay, guys. So this is the Regal Academy LMS. Okay, Regal Consultants का हमने academy start की है because many people wanted to know what other courses we are teaching. So here is the list of all the courses we are teaching. Okay. इसमें से जो courses available हैं उसको हम सिर्फ अभी bold किए हुए हैं. इसका material इसमें अभी available है. तो आपको जो next जो भी material available होगा, चाहे वो recordings हो, चाहे वो files हो, जो भी हो, आप यहाँ से access करेंगे. That is regalconsultants.in/LMS. ठीक है, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे और ये इसका एक्सेस अवेलेबल है सिर्फ उन लोगों को जो फुल फी पे किए हुए हैं. ओके, फ्रॉम हियर आप यहाँ पर जो भी टॉपिक है उस पर आप क्लिक कीजिए. ये सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के लिए है, सबको एक्सेस नहीं होता. तो यू जस्ट गो हियर एंड पुट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. आपका यूजर नेम पासवर्ड हम बना के देंगे आपको. ऑलराइट, सी once you are logging in, this is your profile. I'll go back. I'll just access this course now. So this is the course, and from here you can access all of these modules. Okay, this is digital marketing introduction class recording. This is the digital marketing introduction slides, and this was the assignment which was given in the class. Okay, in future you will have to submit your assignments. वो कैसे करना है हम आपको आगे बताएंगे, not now. इसी तरीके से हर टॉपिक के साथ में उसके अंदर के मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के साथ में उसके फाइल्स यहाँ पे ऐड अप होते जाएंगे. ठीक है, आज जैसे हमने वेब डिजाइनिंग की तो यू विल सी दीज फाइल्स हियर, और उसके फाइल्स वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं. ओके, द मोमेंट यू क्लिक यू विल बी टेकन टू वीडियो वेयर यू विल बी आस्क्ड फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड. हो सकता है जो आप अभी एक्सेस कर रहे हैं गूगल का, आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के वहां पे आपको सेम उसी तरीके से एक्सेस मिलेगा. लेट मी शो यू हाउ. सी, if you have access, it will directly open like this. If you do not have access, it will ask you to get access. Okay, same sharing method. So with that, we are done with the class. If you have any doubts, I'm stopping the recording now. You can ask doubts if you have any doubts. Okay, thank you very much.